Good morning. Good morning, all of you. Good morning. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग. जिनका भी टीवी ऑन होगा वो ऑफ कर लेंगे. आवाज आ रही है किसी भी स्टूडेंट के यहाँ से. आज टुडे आई विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ बायो. व्हाई डू वी फॉल इन. मैं बीमार क्यों पड़ता हूँ. यस, मॉर्निंग. टुडे आई विल स्टार्ट द चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल. In this chapter there are so many terms. First of all, healthy and unhealthy person. A diseased person and a healthy person. How can you define that that person is healthy? You know that there are so many systems in our body. हमारे बॉडी में बहुत सारा सिस्टम काम करता है. जो हमने बताया था कि सेल यूनाइट होकर के टिश्यू बनाता है और टिश्यू दैट यूनाइट्स and that form the organ, an organ that after uniting that form the system and then organisms. So they are so system in our body. हमारे बॉडी में बहुत सारा सिस्टम्स है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, endocrine system, excretory system. So yes, there is skeleton system. Yes, so there are so many systems in our body, and all systems are made up of some organs. बहुत सारा organs मिल करके एक system बनाता है. तो जैसे digestive system help in digestion, circulatory system that helps in the circulation of the blood. जैसे heart हमारा है, heart is the main organ. उसी तरह nervous system controls all the body activity of the body, that is nervous system. Brain है. Excretory system that excretes our waste product from the body. It is toxic if it will not, yes, it will not excreted from the body, that will harm our body. Endocrine system that is related to the hormones. It is ductless gland and hormone is secreted from endocrine glands. So if any organs of the body is not working properly, then we can say that coordination in the body is not going on properly. हमारे बॉडी का कोऑर्डिनेशन सही से नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज सिक, वो बीमार है. Because any organ is not working properly, then there will be disorder in the body. अगर हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहा है, देन क्या होगा, हमारे बॉडी में डिसऑर्डर होगा और वो हमारा बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं करेगा. इट मीन्स कि ही इज नॉट वेल, दैट पर्सन इज नॉट वेल. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जानते होंगे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने गुड हेल्थ का डेफिनेशन दिया है कि पर्सन इज गुड हेल्थ इज a state of complete physical, mental and social well-being. You can write it. What is the definition of good health according to WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से what is the definition of good health? A good health is a state of complete physical, mental and social well-being. You can write, लिख लो. According to World Health Organization, WHO बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हिसाब से एक अच्छे हेल्थ का डेफिनेशन उसने दिया है क्या, कि गुड हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. अगर कोई आदमी पूरी तरह से फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है एंड सोशली वेलबींग है, देन दैट पर्सन इज नोन एज that he is a healthy person, he has a good health. Is it clear? Did you understand it? Physical health means it refers to the normal state, structure and functioning of various body organs. फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है कि हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर, उसमें
कोई भी ऑर्गन जो है वो हमारा बिल्कुल सही से काम कर रहा है, वो डिसऑर्डर नहीं। दैट इज द फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब वी आर फ्री फ्रॉम ऑल द एग्जाइटीज, हम पूरे तरह चिंता मुक्त है। इट इज एसोसिएटेड विद द मेंटल सेटिस्फेक्शन ऑफ ए पर्सन। इट मेंटेन्स ए बैलेंस एंड हार्मोनी बिटवीन इंडिविजुअल। और सोशल हेल्थ का मतलब हुआ कि हमारा कम्युनिटी के अंदर जो है वो हाइजीनिक कंडीशन अच्छा है, गंदगी नहीं है। दीज ऑल थ्री combines and that forms a good health. Is it clear? Did you understand it? Now, what are the significance of a good health? Are you listening, dear student? Okay. तो अब what are the significance of good health? किसी अच्छे हेल्थ का सिग्निफिकेंस क्या है? What are the significance? Good health increases working efficiency of a person. अच्छा हेल्थ रहेगा तो हमें काम करने की क्षमता जो है वो ज्यादा अच्छे से हम करेंगे। पहला तो हो गया कि गुड हेल्थ इंक्रीजेज वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन। सेकेंड, इट लीड्स टू, हाँ हाँ हाँ, यस, इट विल फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस। यहाँ मेंटली फ्री रहेंगे तो हम किसी भी सिचुएशन को अच्छे से वो टैकल करेंगे। अगर हम हेल्दी हैं तो हम घबराएंगे नहीं, हम टैकल करेंगे, वी विल फेस इट, हम उसको अच्छे ढंग से टैकल करेंगे। गुड हेल्थ गिव्स चेयरफुलनेस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। गुड हेल्थ क्या करता है? अच्छे खुश रखना जानता है, पॉजिटिव, यस, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। इज इट क्लियर? गुड हेल्थ गिव्स सेटिस्फेक्शन ऑफ लीडिंग ए पर्पसफुल लाइफ। अच्छा हेल्थ क्या कर दिखाता है? सेटिस्फाइड होता है आदमी और अच्छे से लाइफ गुजारने की प्रेरणा देता है। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ गुड हेल्थ। और अगर हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन इफ इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, then we can say that there is disorder in the body। और वो हम कह सकते हैं कि there is some disorder, so he is, that person is sick, वो आदमी बीमार है, हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बॉडी कोऑर्डिनेट अच्छे से कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये डिसऑर्डर है। अब जैसे सब समझो, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। अगर हम स्कूल में काम कर रहे हैं तो हमारा पूरा एक सिस्टम होता है, प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, टीचर क्लास देखते हैं, नन नन ये जो तुम्हारा अकाउंटेंट वगैरह है वो स्कूल का मैनेजमेंट जो है फीस, हाँ, अगर उसमें से कोई भी किसी की भी तबीयत खराब हो जाए या सपोज करो दो टीचर एब्सेंट हो जाते हैं तो एक रूटीन बदल जाता है, उसमें सब्स्टिट्यूट क्लास लगता है, तो वो एक डिसऑर्डर कहलाता है। दैट इज कॉल्ड डिसऑर्डर। वो सही ढंग से क्लास नहीं चल पाएगा, अच्छे से नहीं चलेगा, तो दैट इज द डिसऑर्डर। तो एक अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेशन के लिए एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली गोइंग ऑन। और हमारे बॉडी का भी वही चीज है, सारा सिस्टम जितना भी लाइफ प्रोसेस है हमारे बॉडी का, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, अगर उसमें से कोई भी ऑर्गन अगर सही से काम नहीं करता है तो हम वी कैन से दैट ए पर्सन इज सिक। इज इट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड इट? यस। तो हमने आपको बताया कि एक अच्छे हेल्दी पर्सन का सिग्निफिकेंस क्या है, और गुड हेल्थ का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेफिनेशन दिया है कि इट इज गुड हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर मेंटली, सोशली और फिजिकली कोई अच्छा है तो उसे हम उस आदमी को कहेंगे कि ही हैज ए गुड हेल्थ, उसके पास अच्छा हेल्थ है, एंड दैट पर्सन इज नॉट सिक। नाउ सिम्टम्स एंड व्हाट इज डिजीज। डिजीज अभी जस्ट हमने आपको बताया कि इट इज द डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी, बॉडी का डिसऑर्डर है। इफ एनी organ is not working properly, then you can say that there is disorder in the body। And the word disease, disease एक word है, actually means a state of uneasiness। disease का मतलब क्या होता है? this word that is actually meaning uneasiness, discomfort, disturbed ease, that is called a disease। disease का मतलब क्या हुआ कि बॉडी के अंदर हमारे अनइजीनेस फील कर रहे हैं, हेडेक है, स्टमक है में हमें पेन हो रहा है, या कहीं कोई प्रॉब्लम शो कर रहे हैं, अनइजीनेस शो कर रहे हैं, डिस्कम्फोर्ट शो कर रहे हैं, डिस्टर्ब
डिस्टरबेंस शो कर रहे हैं, इट मीन्स कि it is a disease. It can be defined as condition in which normal functioning of the body is not doing well. हमारे बॉडी का नॉर्मल फंक्शन जो है वो सही से नहीं कर रहा है काम, वो डिस्टर्ब है, एनी ऑर्गन इज डिस्टर्ब, इट मीन्स के दैट इज नोन एज ए डिजीज. इज इट क्लियर? डिजीज का मतलब, बीमारी का मतलब ये नहीं कि किसी को बहुत बड़ा बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस है या कैंसर है या दूसरी बीमारी, तभी हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन हम फील कर रहे हैं, अनइजीनेस फील कर रहे हैं, हेडेक फील कर रहे हैं, इट मीन्स के वो हमारा एक डिजीज है. अनइजीनेस ऑफ इन द बॉडी, डिस्कम्फर्ट इन द बॉडी, डिस्टर्ब इज, दैट इज कॉल्ड डिजीज. अब उस डिजीज को पहचानने के लिए क्या होता है, कुछ सिम्टम्स होता है बॉडी के अंदर, साइंस होता है. साइंस का मतलब पहचान. डॉक्टर कैसे पहचानते हैं कि इसको मलेरिया है, इसको ट्यूबरकुलोसिस है, इसको निमोनिया है, इसको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो देयर सम सिम्टम्स. सिम्टम्स बताएगा कि बाएं साइड दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, हमें यहाँ पे थोड़ा सा पेन हो रहा है लेफ्ट साइड, तो डॉक्टर तुरंत ईसीजी कराते हैं, हार्ट को चेक करते हैं, हार्ट के पास जाता है, क्योंकि लेफ्ट साइड हार्ट होता है, उधर पेन होने का मतलब गैस से भी पेन हो सकता है, हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो तुरंत हम ईसीजी कराते हैं. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, उससे हम उसका ग्राफ चेक करते हैं कि कोई वेन ब्लॉकेज तो नहीं है. तो इट मीन्स कि हम उसके सिम्टम को देखते हैं. कोई डिजीज है तो हम वी सी द सिम्टम, साइन. सिम्टम क्या है? दस इट इज ए चेंज इन द नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम, है ना. कुछ भी चेंज हुआ, सर में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, तो दांत में कहीं पे हमारा टूथेक है, दांत में दर्द है, या फिर किसी तरह का सिम्टम हम दिखाएंगे, देन उसका टेस्ट होगा. अगर सिम्टम नहीं बताएंगे तो डिजीज इज नॉट रिकॉग्नाइज, कौन सा डिजीज है वो. और जब तक डिजीज रिकॉग्नाइज नहीं होगा, उसका सर्टेन मेडिसिन आप नहीं यूज करेंगे, ए पर्सन विल नॉट बी हेल्दी, वो अच्छा नहीं होगा, दैट विल नॉट बी क्योर्ड, वो सही से उसका इलाज नहीं हो सकता है. इज इट क्लियर व्हाट आई एम टेलिंग यू? समझ में आ रहा है सब कुछ? यस. अब देखो, डिजीज जो है सिंपली इट इज ऑफ टू टाइप्स. टू टाइप्स का मतलब अभी बहुत सारा है, जैसे अब डिजीज है, इन्फेक्शस है, नॉन इन्फेक्शस, दैट इज डिफरेंट थिंग. अभी एक्यूट और क्रोनिक, मेन डिजीज जो है हमारा, इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज. तो एक्यूट डिजीज जो होता है वो ज्यादा देर तक नहीं रहता है और हमारे बॉडी को ज्यादा डैमेज नहीं करता है. समझ में आया? acute disease appears suddenly, produce severe symptoms and last for a short period. acute disease क्या होता है? suddenly आएगा और very short period के लिए रहेगा, and it will not affect a certain organ, वो certain organ को affect नहीं करेगा. लेकिन जो chronic disease है, that develops gradually, धीरे धीरे धीरे, तुम्हें पता नहीं चलेगा, that develops gradually and last long duration even of several years, बहुत दिनों तक, आपको, हाँ, सालों साल तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्रोनिक डिजीज. तो इस तरह से ये जो तुम्हारा है, जैसे एक्यूट डिजीज होता है, कॉमन कोल्ड है, कफ है, इन्फ्लुएंजा है, जैसे सर्दी हो गया ना. अभी अभी रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में बैक्टीरिया वायरस जल्दी वो ग्रो करता है और ज्यादा दिन तक वो सरवाइव करता है, वो मरता नहीं. तो इस कंडीशन में देखोगे बहुत ज्यादा फीवर किसी को आ जाएगा, सर्दी हो जाएगा, नाक से पानी छींक आना. तो अभी का तो पेंडेमिक है, इसलिए प्रॉब्लम है कि जहाँ किसी को सर्दी हुआ, खांसी हुआ, तो लोग तुरंत कोरोना समझने लगते हैं. लेकिन इसका टेस्ट है तुरंत, चूंकि टाइप, जैसे जानते हो कि हेपेटाइटिस का टाइप होता है ए से जेड तक, और सबसे ज्यादा खतरनाक हेपेटाइटिस बी होता है, जिसको लीवर कैंसर बोला जाता है, लीवर सिरोसिस. हेपेटाइटिस लीवर कैंसर को बोला जाता है, और हेपेटाइटिस जॉन्डिस को भी कहा जाता है, लेकिन वो टाइप है. अगर हेपेटाइटिस बी किसी को होता है तो दैट इज वेरी फैटल, वो खतरनाक होता है. उसी तरह सर्दी वगैरह भी कोरोना ही का एक टाइप है, लेकिन ये जो वाइटल है, कोविड-19 इज वेरी फैटल वायरस. अगर किसी को वो पॉजिटिव हो गया तो दैट इज वेरी फैटल. तो ये जो तुम्हारा क्रोनिक डिजीज है और एक्यूट डिजीज है, इसमें तुम्हें
डिफरेंसेस मैं लिखा रहा हूं, राइट डाउन। पेन और कॉपी है तुम्हारे पास? हाँ लिखो। वो कॉलम बना लेना, 3 कॉलम बनाना। एक तरफ लिखना कैरेक्टरिस्टिक्स, मेक 3 कॉलम्स। 3 कॉलम्स बना करके एक में लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरे में एक्यूट डिजीज और तीसरे में क्रोनिक डिजीज। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और acute disease and chronic disease। Did you write? हाँ, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले लिखो फर्स्ट पॉइंट में ड्यूरेशन, DURATION, कितना देर वो रहता है, शॉर्ट पीरियड है या लॉन्ग पीरियड, ड्यूरेशन लिख लो। कैरेक्टरिस्टिक्स में ड्यूरेशन, ड्यूरेशन। एक्यूट डिजीजेस लास्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड। हाँ, एक्यूट डिजीज में क्या लिखोगे? लास्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड। एक्यूट डिजीज लास्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड and chronic disease lasts for much longer period. Chronic diseases last for much longer period. Yes, chronic diseases last for much longer period. First हो गया इसका पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखो सिम्टम्स। सिम्टम्स, SYMPTOM। जैसे कोई डॉक्टर कैसे पहचान करता है किसी बीमारी का? सिम्टम्स क्या होता है? उसको लक्षण बोलते हैं हिंदी में। हाँ, सिम्टम्स, SYMPTOMS, सिम्टम्स। सेकेंड पॉइंट। एक्यूट डिजीज में लिखोगे सीवियर एंड सडन। सीवियर एंड सडन, अचानक होगा, मतलब जैसे कोई चीज तुरंत होता है तो तुरंत गायब हो जाता है, तो एक्यूट डिजीज में सीवियर एंड सडन, SCVER, सीवियर एंड सडन, SUDDEN, सडन। सिम्टम इसका तुरंत सर्दी होगा, तुरंत गायब हो जाएगा, 2-3 दिन रह करके, मतलब वो ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। फीवर आएगा, हाई फीवर होगा, फिर वो डाउन हो जाएगा। ये सब है सिम्टम एक्यूट डिजीज का। सीवियर एंड सडन, एक्यूट डिजीज में क्या हो गया? सीवियर एंड सडन। और क्रोनिक डिजीज में लेस सीवियर एंड ग्रेजुअल। क्रोनिक डिजीज जो होगा धीरे धीरे तुमको वो बुखार चढ़ेगा या फिर वो बीमारी का सिम्टम नजर आएगा। लेस सीवियर, LESS, सीवियर एंड ग्रेजुअल, धीरे धीरे। लिख लिया? लेस सीवियर एंड ग्रेजुअल क्रोनिक में। थर्ड पॉइंट लिखो इफेक्ट ऑन हेल्थ। थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑन हेल्थ। हेल्थ पे क्या असर पड़ता है एक्यूट डिजीज में, क्रोनिक डिजीज में? इफेक्ट ऑन हेल्थ, EFFECT, इफेक्ट ऑन हेल्थ। सिवियर, नो मेजर इफेक्ट्स ऑन जनरल हेल्थ। एक्यूट डिजीज में नो मेजर इफेक्ट्स ऑन जनरल हेल्थ। कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा इफेक्ट ऑन हेल्थ, एक्यूट डिजीज में लिखोगे नो मेजर इफेक्ट्स ऑन जनरल हेल्थ, नो मेजर इफेक्ट्स ऑन जनरल हेल्थ। और क्रोनिक में क्या होगा? बैड इफेक्ट्स ऑन जनरल हेल्थ, बैड इफेक्ट्स ऑन जनरल हेल्थ। यस, समझ गए ना? एक्यूट डिजीज में ये सब अलग अलग पॉइंट्स दे करके अब लिखो लॉस ऑफ वेट। फोर्थ पॉइंट में लिखो लॉस ऑफ वेट। कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखो फोर्थ पॉइंट लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ वेट। एक्यूट डिजीज में निकला नो। एक्यूट डिजीज में वेट ऑफ लॉस नहीं होता है, नो, क्योंकि ये छोटा मोटा होता है, टेम्पोररी पीरियड के लिए होता है, खत्म हो जाता है। वेट ऑफ लॉस नो। और क्रोनिक डिजीज में यस, लॉस ऑफ, हाँ यस, लॉस ऑफ वेट अकर्स। यस कर देना, लॉस ऑफ वेट अकर्स, लॉस ऑफ वेट अकर्स, OCCURS, लॉस ऑफ वेट अकर्स। और देखो कुछ चीज है, 4 पॉइंट तो मेन लिख लिया, कुछ अब दूसरी चीज हम समझा रहे हैं उसको देखो। जैसे थकान होता है, टायर्डनेस, टायर्डनेस, तो टायर्डनेस होगा, टेम्पोररी टायर्डनेस होगा। किसमें? एक्यूट डिजीज में टेम्पोररी टायर्डनेस होगा। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज होगा
उसमें प्रोलॉन्ग हो जाता है, ज्यादा लंबा खींच जाता है। टायर्डनेस वगैरह अगर हुआ तो डेट विल प्रोलॉन्ग, ज्यादा दिन वो खींचता रहेगा, एग्जॉस्शन जो जिसको बोलते हैं। समझे? इज इट क्लियर? अब लिख लो इसमें एक्यूट डिजीज कौन कौन हो सकता है। कफ हो गया, कोल्ड हो गया। एग्जाम्पल लिख लो, कफ, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डायरिया, कॉलरा, ये सब एक्यूट डिजीज में आता है। राइट डाउन। हाँ, जॉन्डिस वगैरह वो ये हो जाएगा। जॉन्डिस तुम्हारा एक्यूट में नहीं आएगा, क्योंकि वो लीवर को डैमेज कर देता है। समझे? वो क्रॉनिक में आ जाएगा। समझे? ये लिखो। मम्स वगैरह आ जाएगा एक्यूट में। मम्स जो गाल फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, वो सब तुम्हारा वो आएगा तुम्हारा एक्यूट में। बेलाडोना प्लास्टर लगाते हैं गाल पे तो वो मम्स जो है खत्म होता है। हाँ, लिख लो। एग्जाम्पल में एक्यूट डिजीज में कफ, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, INFLUENZA, वायरल डिजीज है इन्फ्लुएंजा। डायरिया, डू यू नो द स्पेलिंग ऑफ डायरिया? डायरिया का बोलो तो स्पेलिंग। DIA, DIARRHOEA, दायर हुआ बोलते हैं। डायरिया हुआ, उसको हम प्रोनाउंस कर देते हैं दायर हुआ। DIARRHOEA, डायरिया, है ना? उसी से दांत का एक बीमारी होता है पायरिया। पायरिया का नाम सुना है ना? ब्लीडिंग होता है गम से, दांत से ब्लड आने लगता है, उसको पायरिया बोलते हैं, है ना? इट इज द डिजीज ऑफ टीथ, पायरिया। और डायरिया में क्या होता है? डू यू नो व्हाट हैपेंस इन डायरिया? लूज मोशन एंड वोमिटिंग। डायरिया में क्या होता है? वाटर इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी, है ना? वोमिटिंग होगा, लूज मोशन होगा, दैट इज कॉल्ड डायरिया। और यही जो है कॉलरा भी, दैट इज सिमिलर टाइप, लेकिन ये एक तरह से इपिडेमिक है। कॉलरा जो हो जाता है गांव के गांव, मैंने उसको फैलता है, वो कम्युनिकेबल डिजीज होता है कॉलरा, है ना? उससे पेट खराब हो जाएगा और उसका जो इन्फेक्शन है वो दूसरे को लगता है, इस तरह से फैलता जाता है। कॉलरा इज इपिडेमिक, वो डेंजरस होता है, लेकिन एक्यूट डिजीज में माना जाता है डायरिया के साथ। और क्रोनिक में क्या होगा? क्रोनिक में लिख लो डायबिटीज, हाँ, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब कभी किसी को हो जाता है तो कंटिन्यू लॉन्ग लाइफ तक उसको दवा खाते रहना पड़ता है। ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस। इज इट क्लियर? समझ गए ये एक्यूट एंड ये इस तरह से पूछा जाता है। अब तुम्हें काउज ऑफ डिजीजेस, ये तो वहां हो गया एक्यूट डिजीजेस, क्रोनिक डिजीज, डिजीज किसको कहते हैं, हेल्दी पर्सन किसको कहते हैं, वो बता दिया हमने। अब है काउज ऑफ डिजीजेस। Cause of diseases can be broadly separated into three levels: immediate या primary cause, second है secondary cause, और थर्ड है improper facilities, that is tertiary cause। अब ये तो डिजीज का काउज है, लेकिन अब जैसे हम कंडीशन, जैसे कोई भी हेल्थ, गुड हेल्थ के लिए व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी, एक अच्छे हेल्थ के लिए व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी? बैलेंस डाइट चाहिए हमें। बैलेंस डाइट समझते हो? द डाइट इन विच ऑल द न्यूट्रिएंट्स, हाँ, ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द राइट अमाउंट। The diet in which the all the nutrients present in the right amount, that is called balanced diet। हाँ, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन मिनरल्स है, रफेज है। रफेज समझते हो ना? रफेज इज द आउटर फाइबर ऑफ द ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, जो ऊपर का छिलका होता है, रफेज उसको बोलते हैं। और हमारे लिए, बॉडी के लिए रफेज बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, समझते हो? रफेज, अगर हम सेब खा रहे हैं तो उसका जो ऊपर का आउटर कवरिंग छिलका है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम चना खाते हैं तो चना के ऊपर जो कवरिंग है, जो उसका छिलका होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी को रफेज कहा जाता है। अगर हम उसको लेते हैं, चना का सत्तू खाते हैं, तो हमारा कॉन्स्टिपेशन रुकता है। अगर तुम मैदा का कोई चीज खाओ डेली, गेहूं है, आटा है, आटा से तुम उसका जो फाइबर पार्ट है, सीविंग प्रोसेस से चाल के निकाल दिया तो बच गया मैदा। तो मैदा से अगर कचौड़ी डेली खाओगे तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, लेकिन हम रोटी खाते हैं तो नहीं खराब होता है। तो कहने का मतलब ये रफेज होता है, जिसको हम सीविंग करके निकाल देते हैं, जिसको चोकर कहा जाता है, रफेज कहा जाता है। ग्रेन्स का जो ऊपर का छिलका होता है, फाइबर पार्ट होता है, रफ पार्ट,
उसी को रफेज कहा जाता है। तो वी शुड टेक रफेज, हमें लेना चाहिए, चना खाना चाहिए, हमें आटा ऐसे चाल के नहीं उसको यूज करना चाहिए। मैदा यूज करोगे तो पेट खराब रहेगा। मैदा कचौड़ी वगैरह नहीं ज्यादा खाना चाहिए, एक वीक में एक दिन खाए तो खाए। तो इस तरह से रफेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। और रफेज क्या है? ये आउटर कवरिंग ऑफ द ग्रेन्स या आउटर कवरिंग ऑफ द वेजिटेबल्स होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये बैलेंस डाइट में आता है। कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ में बैलेंस डाइट आ जाएगा। पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन में होगा कि हमें साफ सुथरा अपना कपड़ा साफ सुथरा रखना है, डेली नहाना है, वो हमारा जो बनियान है उसको डेली साफ करना है, अंडर गारमेंट साफ करना है, ये सब कि अपने आसपास सब कुछ को सही से साफ सुथरा रखना है, गंदगी नहीं रखना है। दिस इज नोन एज पर्सनल हाइजीन। और कम्युनिटी हाइजीन होता है कि आस पड़ोस में, गांव में वो जो गंदगी कोई फैला रहा है, कहीं पे कूड़ा फेंक रहा है, तो उसको वो साफ सुथरा होना चाहिए ताकि वो इन्वायरमेंट क्लीन रहे। वो हो गया कम्युनिटी हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मीन्स हो गया कि हमें अपना सब कुछ डेली नहाना है, साफ रखना है, अपने कपड़े को साफ रखना है, जहाँ पे बैठते हैं वो सब क्लीन होना चाहिए। दिस इज द पर्सनल हाइजीन। तो कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ में बैलेंस डाइट हो गया, द राइट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट दैट शुड बी टेकन इन द राइट अमाउंट। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में आ गया, चावल हो गया, आलू हो गया, ये सब में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। ये एनर्जी गिविंग फूड को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, जानते हो ना? और एनर्जी गिविंग फूड इज कार्बोहाइड्रेट। और और बताओ बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड किसको बोलते हैं? तीन फूड जो होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड, उसके बाद वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, फैट्स एंड मिनरल्स, ये सॉरी विटामिन एंड मिनरल्स, ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और ये जो देता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? एनर्जी गिविंग फूड है। और दूसरा क्या होता है जी? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड होता है, एनर्जी गिविंग फूड, इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाला फूड, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फूड। नाउ क्लीन, नॉन polluted and disease free surrounding, clean and pollution free air, healthy habits, these are the condition necessary for good health। अब आइए, हमारे पास जो डिजीज काउज करता है वो कुछ एजेंट्स होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब क्या करता है? हाँ, ये सब डिजीज काउज करता है। तो जो डिजीज बैक्टीरिया काउज करता है उस डिजीज को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल डिजीज। एंड द डिजीज काउज, हाँ, द डिजीज काउज बाय द वायरस दैट इज कॉल्ड वायरल डिजीज। द डिजीज वायरल डिजीज है ना। द डिजीज काउज बाय द बैक्टीरिया इज bacterial disease, the disease caused by the virus viral disease, the disease caused by the fungus that is fungal disease। जैसे हाथ में इचिंग वगैरह हो जाता है, एथलीट्स फुट हो जाता है, उसको फंगल डिजीज बोलते हैं। ठीक है? तो अब there are two types of disease, infectious और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। हाँ, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है, ए डिजीज which can spread from one sick person to the healthy person। हाँ, यस राइट, तुम्हारा वही इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस को ही कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। उसी को इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस। नॉन इन्फेक्शस में हो गया कौन सा? नॉन कम्युनिकेबल। और इन्फेक्शस में हो गया कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक। अब जैसे काउज क्या है? तो काउज बाय फैक्टर्स अदर देन पैथोजेंस। नॉन इन्फेक्शस डिजीज जो होता है वो क्या कुछ फैक्टर्स से काउज होता है। और इन्फेक्शस डिजीज जो होता है काउज बाय डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको पैथोजेंस बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझते हो? द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, इट कैन बी सीन बाय द पावरफुल माइक्रोस्कोप। हाँ, तो उसको पैथोजेंस बोला जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज, हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज पैथोजेंस caused by disease causing agents। जैसे माइक्रो पैथोजेंस में तुम्हारा बैक्टीरिया, वायरस, ये फंगस, ये सब आ जाएगा पैथोजेंस में। फैक्टर्स फॉर डिजीज इंटरनल होता है, किसमें? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में
नॉन इन्फेक्शस डिजीज में जो फैक्टर होता है दैट इज इंटरनल, और इन्फेक्शस डिजीज का जो काउज होता है, जो फैक्टर्स होता है दैट इज एक्सटर्नल, उसको एक्सटेंसिंग फैक्टर बोलते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर को एक्सटेंसिंग फैक्टर बोला जाता है और इंटरनल फैक्टर को इंट्रिंसिक फैक्टर भी बोला जाता है। समझे? इज इट क्लियर? अब देखो, नॉन इन्फेक्शस डिजीज, जिसको तुम नॉन कम्युनिकेबल भी बोल सकते हो, नो ट्रांसमिशन एक्सेप्ट हेरिडिटी डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो जाता है, थ्रू ब्लड जाता है, वो अलग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक डिजीज बोला जाता है उसको। पेरेंट्स से जो डिजीज बच्चे में चला जाता है दैट इज अनदर। वो कौन सा फैक्टर कहलाएगा? इंटरनल फैक्टर। वो कैरेक्टरिस्टिक जैसे पेरेंट्स का बच्चे में जाता है ऑफस्प्रिंग में, उसी, हाँ जेनेटिकली, राइट, जे जीन के थ्रू जाता है जेनेटिकली, तो उसको जो बोलते हैं इंटरनल फैक्टर। तो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, नो ट्रांसमिशन एक्सेप्ट हेरिडिटरी डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये होता है नॉन इन्फेक्शस डिजीज में। और इन्फेक्शस डिजीज में क्या होगा? थ्रू कंटेमिनेटेड एयर, ये जो पास करेगा ये एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू बीमारी फैलता है, थ्रू कंटेमिनेटेड एयर, गंदा हवा के जरिए, कंटेमिनेटेड एयर, पॉल्यूटेड एयर, वाटर और फूड, हवा, पानी और खाना। जैसे खुला हुआ खाना है, कहीं पे खुला हुआ, जैसे रोड पे कोई बेच रहा है, ये लिट्टी बेच रहा है या फिर चाउमीन बेच रहा है, गंदे जगहों पे खोल के ऐसे ही बेच रहा है, तो वहां पे क्या होगा? मक्खी बैठती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स उस पे बैठता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, उसी को खा रहे हैं हम, उसका हाथ नहीं देख रहे हैं, ग्लोव्स नहीं पहने हैं, गंदा है, और हम उसी हाथ से वो निकाल के दे रहा है सब कुछ। तो ये जो हुआ वो एक्सटर्नल फैक्टर है, पानी की गंदगी से, फूड की गंदगी से जो फैलता है, थ्रू कंटेमिनेटेड एयर, वाटर और फूड से ये फैलता है। इज इट क्लियर? अब कम्युनिटी हाइजीन से हम क्या कर सकते हैं? उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। कम्युनिटी हाइजीन से मतलब हम अवेयर करेंगे गांव के लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को, कम्युनिटी हाइजीन से प्लेज नो रोल इन देयर कंट्रोल। इसमें इन्फेक्शस डिजीज जो इंटरनल फैक्टर है, वो तुम्हारा किसी कम्युनिटी कंट्रोल से नहीं ये रुकेगा, क्योंकि वो तो इंटरनल फैक्टर से फैलता है। लेकिन जो बाहरी फैक्टर से, गंदगी से फैल रहा है या एयर के पोल्यूशन से फैल रहा है, उसको तो अवेयरनेस से रोका जा सकता है। कैन रिड्यूस इन्फेक्शस डिजीज, कैन रिड्यूस, कैसे रोक सकते हैं? बाय कम्युनिटी हाइजीन, अवेयरनेस के जरिए कर सकते हैं ना, कि नहीं? वी कैन स्टॉप इट, वी कैन, हम उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप नॉन इन्फेक्शस और इन्फेक्शस डिजीज में कौन कौन आता है? एग्जाम्पल, नॉन इन्फेक्शस डिजीज में आ जाता है जैसे ब्लड प्रेशर है, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया तो वो किसी से फैलता नहीं है। हार्ट की बीमारी है, हार्ट डिजीज, तो वो किसी से फैलता है? वो तो इंटरनल फैक्टर से होता है, तो वो इट इज नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शस डिजीज है। ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज, कार्डियक डिजीज, हाँ डायबिटीज, हाँ वो फंगस से, जैसे, हाँ वो भी तुम्हारा नहीं, वो फैल जाता है, वो फैलता है वो जैसे इचिंग किसी का हो रहा है, फंगल डिजीज है, इचिंग इचिंग हो रहा है, तो वो तुम अगर उसका रुमाल वगैरह यूज करोगे, हैंकी वगैरह यूज करोगे, तो वो फैलेगा, एक दूसरे से फैल जाता है वो। समझे? फंगल डिजीज, हाँ कौन सा? हाँ रिंग वॉर्म भी, जैसे रिंग वॉर्म है, किसी को अगर इचिंग है और तुम्हारा उसका यूज किया हुआ सामान जो है या हाथ उस सट जाएगा, तो उससे तुम फैल सकता है, वो स्किन डिजीज है ना, दैट कैन बी, इट, हाँ इट कैन इन्फेक्ट, वो तुम्हारा इन्फेक्शन फैला सकता है। समझे? इसलिए उसका कोई, जैसे कपड़ा पहना हुआ और वो यूज कर लिया किसी ने या छू दिया, तो उससे भी फैल सकता है। तुम्हारा मेन जो है नॉन इन्फेक्शस डिजीज में आर्थराइटिस है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियक है, माने कार्डियक माने हार्ट डिजीज, डायबिटीज है, ये सब तुम्हारा नॉन इन्फेक्शस है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता। और कौन कौन फैलेगा? कफ फैलेगा, कोल्ड फैलेगा, इन्फ्लुएंजा फैलेगा, कॉलरा फैलता है,
मिजिल्स है, निमोनिया है, डायरिया है, मलेरिया है, ये इन्फेक्शस डिजीज है, समझे? दीज आर इन्फेक्शस डिजीज। कफ कोल्ड ये सब जो अभी देख रहे हो, छुआछूत वाला जो बीमारी हो रहा है कोरोना, ये इन्फेक्शस डिजीज है, एक दूसरे से टच होने से फैल जा रहा है। तो इज इट क्लियर टू यू, इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस? तो इतना चीज हमने बताया, चूंकि अभी ये तुम्हारे सेकेंड टर्म का चैप्टर है, लेकिन हमने टिश्यू और ये पढ़ा दिया है, सेल रिवीजन भी करा दिया है, फिर होगा तो रिवीजन कराएंगे, तो इसलिए हमने इसको आज स्टार्ट कर दिया है, फिर होगा तो आगे फिर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिर इन्फेक्शंस नॉन इन्फेक्शस डिजीज को अगेन, फिर बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोल डिजीज, वर्म से जो होता है वो डिजीज, और फिर उसका सिम्टम्स, काउज, रीजन और इलाज, ये आगे चलता रहेगा। आज हम इतने ही पढ़ा करके खत्म कर रहे हैं। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।